हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। The more love is celebrated, the more it gets spread. But have you ever noticed, खाना जो है वो हमें कितनी नई चीजें एक्सप्लोर कराता है, नए कल्चर्स एक्सप्लोर कराता है। ऑफिस से लेकर स्कूल की कैंटीन में भी अगर हम पीछे चले जाए तो हमेशा अगर याद आता है तो वो है खाना। Because food has always been the best source of bonding. जी हाँ, खाने में कुछ ऐसा ही एहसास है। किसी से कभी लड़ाई हो जाए, कोई फ्रेंड कभी नाराज हो जाए, उसे अपने हाथ से प्यार से खाना बनाकर खिलाइए, आई एम श्योर सब कुछ सही हो जाएगा। You know why? Because food has the power of love. वाह क्या टेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा कपूर। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट कुकरी शो में, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं होटल विवांता बाय ताज, which never fails to satisfy their visitors and their tourists. It has got so many chains all around the world and have been maintaining a healthy work culture. दोस्तों, अब वक्त है हमारा किचन में जाने का और हमारे शेफ से मिलने का। So let's go there. वाह क्या टेस्ट है। तो दोस्तों, आप सभी का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं हमारी किचन में। You know what? किचन से कौन सी दो चीजें हैं जो बाहर आती है? That is good food and happiness. जी हाँ, और इन्हीं दो चीजों के लिए हम बुलाने जा रहे हैं हमारे शेफ को। So allow me to welcome our chef. Hey, hi Shraddha, how are you today? Very fine, chef. How are you? I'm fine, bit confused. Confused? And I want to do something very different, but not decided yet. ऐसा नहीं हो सकता शेफ, मैं नहीं मान सकती। I really doubt that. मुझे ऐसा लगता है कुछ सोचा करने का, तो you know what you're going to do. Oh yes, I'm going to do something from Northern Africa. There's a country called Morocco. We want to do something from that country. All right. The name of the dish is Chamula Grill Prawns. That sounds super cool. एक काम करते हैं, जल्दी से देखते हैं हमारे फन फैक्ट, वापस आते हैं हमारे प्रॉन्स पे, right? Great. Go for that. Did you know that paprika is a spice made from grounding up different varieties of capsicum and peppers, and it is not red peppers, cayenne powder or chili powder. Paprika comes in various colors ranging from bright red to brown, and surprisingly, red paprika is the mildest, while tan or yellow are often the spiciest. It's loaded with essential vitamins and minerals that can deliver many benefits to your body. I just love paprikas. वो जो एक different सा smoky flavor होता है ना, regular chili powder जैसा बिल्कुल भी नहीं होता. I just love that. So chef, coming back on to our first segment, Chamula grilled prawns, right? तो बताइए कुछ क्या बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाने वाले हैं, क्या डिफरेंट होने वाला है? कंफ्यूजन में क्यों थे शेफ? कंफ्यूजन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके दिल में क्रिएट करना चाह रहा था, ताकि एक थोड़ा सा सस्पेंशन के साथ में कोई चीज़ शुरू करें और फिर वो इंटरेस्टिंग हो जाए, तो उसका मजा ही कुछ और है। परफेक्ट शेफ, तो प्लीज सिखाइए। ओके, वी हैव गॉट सम पील्ड डिवेन्ड प्रॉन्स राइट हियर। हमने इसको साफ़ किया है, इसके अंदर की जो एक नस होती है एक हल्का सा स्लिट देके उसको बाहर निकाला है, और ये प्रॉन्स रेडी टू यूज़ है। हमारे पास में ये मैरिनेट अगर आप देखेंगे ये रेडी है। इसमें हम प्रॉन डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मैरिनेट प्रॉन्स के अंदर जाए, इसके अंदर प्रॉन के अंदर एक टेस्ट क्रिएट करे, फिर हम इसको ग्रिल करेंगे। इसके अलावा हम एक सॉस बनाएंगे, saffron sauce, which is very nice, very smooth, and it will give a very different flavor to the dish. So now we will be starting how to
do charmala grilled prawns. Yes, All right. chef. So on to our first step. Yes. So first, we already have these prawns, which are deveined, clean. Shraddha, do you like prawns? I love prawns. Wow. So definitely you're going to have one of the very different kind of a dish today. Yes. All right. This is the marinade where you have got a paprika. There's a herb powder, different herbs, and some spices with little oil. So chef, ये मैरिनेट करके हमें ऑलमोस्ट कितने टाइम के लिए रखना होगा? आप इसको 10 से 15 मिनट तक साइड में रख सकते हैं आराम से। तो फ्लेवर्स जो हैं वो अंदर चले जाएंगे prawns बराबर। के। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, सी फूड के साथ में ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए टू मेंटेन इट जूस, इसका टेक्सचर लेवल। इसके साथ में ज़्यादा खिलवाड़, ज़्यादा टाइम से ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यू विल नॉट गेट द डिज़ायर फ्लेवर एज वेल एज द टेस्ट। जी। And while you cook, you always have to cook with a little, concentration. If you give a little extra flame to it, it will become more hard. Yeah. Okay, if you give a little low flame, so the temperature of the grill also has to be monitored. So ये मैंने इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख दिया है। So now हम अपनी कुकिंग वाली प्रोसेस शुरू करते हैं। आप देखिए, आपके पास दो तरीके के यहाँ पर हमने पैन्स रखे हैं। ये इसमें हम कंप्लीटली प्रॉन ग्रिल्स करेंगे और बाद में वेजिटेबल भी इसी में ग्रिल करेंगे, और ये हम सॉस बनाएंगे अलग से। ओके, शैल वी स्टार्ट? Yes, आपकी chef. परमिशन है? Please go ahead. ओके, बिफोर वी गो अहेड, मेरे को दर्शकों से एक सवाल पूछना है। सवाल ये है कि जब भी आप आलू बॉईल करते हैं या अंडे डालते हैं, तो आपको छिक्कल निकालने में, जब बॉईल होने के बाद बाहर निकालते हैं, तो छिक्कल निकालने में बड़ी परेशानी होती है। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके छिक्कल बड़े आसानी से उतर सकें? आप सोचिए इसके बारे में। इसका आंसर मैं अगले सेगमेंट में दूंगा। अब हम शुरू करते हैं ग्रिल प्रॉन्स के लिए। Perfect. सो श्रद्धा, अब ये जैसे हमने ग्रिल के लिए छोड़ दिया, आप देखिए मैंने इसकी आंच बहुत धीमी कर दी है। जी। ओके, और अब हम इसमें मार्क्स आ गए, हम थोड़ा थोड़ा इसको ग्रिल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉस बनाएंगे। दिस इज सैफरन सॉस। तो अभी हमने शेफ क्या डाला है इसमें? इसमें भी चॉप अनियन, चॉप गार्लिक, चॉप लीक्स, Alright, olive oil में soak. ऑलिव ऑयल में सोक और फाइनली कट। Alright. और अब ये मैंने थोड़ी सी हल्की सी इसमें क्रीम डाल दी है। You want me to do this? अगर आपका दिल कर रहा है जरूर। Yes. I should at least give it a try, right, chef? Yes, I yes. hope I'm doing fine. शेफ, ये सारी टेक्निक्स भी अगर मैं सीख जाऊंगी तो आई थिंक एक दिन में बहुत अच्छी शेफ भी बन सकती प्लीज कम टू माई किचन, द डोर्स विल बी ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू सो मच शेफ। सो हमने थोड़ा सा सैफरन डाल दिया इसके अंदर, और साथ के साथ हमने इसकी आंच थोड़ी सी कम कर दी है। ये देखिए, जो ब्राइट सैफरन का कलर क्रीम के अंदर। ब्यूटीफुल। And now I'll be adding little of the butter, but at the same time, I'll dim the light, dim the burner. Okay. When we are doing this now, this is the time we'll add some vegetables here. मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये जो वेजिटेबल्स है हल्की सी पार बॉयल है, थोड़ी सी हमने बॉयल करके रखी है, और साथ में हमारी सॉस भी फिनिश हो रही है, और we'll finish with little bit of salt and pepper.
अब ये देखिए हमारे प्रॉन्स और वेजिटेबल्स दोनों रेडी हैं। So, हम इसके बाद थोड़ी सी इस Waiting डिश की time? असेंबली, यस देयर इज अ बिट ऑफ अ पैटर्न आई एम फॉलोइंग वेयर ऑल द टेल्स आर ऑन वन साइड एक्सेप्ट वन। यस, ऑलराइट। Now all. No, even you see it's anti-clockwise, and just stop with. Just I have to do this and trickle the sauce on. See, I wanted to give a very rustic look to the things. Wow. I don't want to make it that assembly is as those picture perfect. So here I take the fresh coriander and put it right here like this. Okay, Shraddha, the dish is ready, all yours. Thank you, Please chef. try and let me know how it is. Now I shall taste this. Wow, chef, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। So how it is, Shraddha? This is really very delicious. Actually, इसकी जो इस पे हमने सॉस डाली है, इसका एक बहुत ही स्मूथ फ्लेवर आ रहा है, जो क्रीमी फ्लेवर दे पा रहा है। Yes. प्रॉन्स का इटसेल्फ जो फ्लेवर है, वो सप्रेस नहीं हो रहा है चामुला से, because I was thinking चामुला बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग सॉस दिख पा रही थी, जिससे हमने इसे मैरिनेट किया है, और जो सॉस ऊपर डली है, उसका अलग फ्लेवर है, शेफ। So all in all, perfect package. Thank you very much. 50 marks. 10 में से 50 नंबर, ये शेफ, ये तो बहुत ज्यादा Thank God. But really very nice, chef. आप लोग भी इसे घर पे ट्राई करिए. I know already you have started salivating. Never mind, recap देख लीजिए. कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए. चामुला ग्रिल्ड प्रॉन्स बनाने के लिए एक बोल में साफ किए हुए प्रॉन्स डालें, उसमें चामुला पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से मिलाएं और उसे 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट करें. अब एक पैन को गरम करके उसमें थोड़ा ऑयल डालें, मैरिनेटेड प्रॉन्स को दोनों साइड से ग्रिल करें और उसी सेम पैन में हाफ कुक्ड किए हुए मिक्स वेजिटेबल्स भी ग्रिल करें. सॉस बनाने के लिए एक पैन में ऑलिव ऑयल डाल के उसमें चॉप्ड अनियंस, लीक, सिलरी, गार्लिक, क्रीम, सोक किए हुए सैफरन का पानी और एक बटर का क्यूब डाल के अच्छे से सॉस को पकाएं. चामुला ग्रिल्ड प्रॉन्स इज रेडी. उसके ऊपर गर्मा गर्म क्रीम सॉस डाल के फ्रेश कोरिएंडर के साथ सर्व करें. वाह क्या टेस्ट है. वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है. दोस्तों, हैव यू नोटिस बचपन से हमारी मम्मीज तो घर पर फिश की बहुत सी डिफरेंट रेसिपीज बनाती आ रही हैं. बट डू यू नो कि फिश की टोटल 33,700 स्पीशीज होती हैं. जी हाँ, और आपको इनके बारे में कितना पता था? नहीं पता था ना? वेल, अगले सेगमेंट में समथिंग फिशी इज गोइंग टू हैपन. क्या होने वाला है जानने के लिए चलते हैं शेफ के पास. वाह क्या टेस्ट है. वेलकम बैक टू योर ओन किचन ऑफ वाह क्या टेस्ट है. इस सेकंड सेगमेंट में हम आपको एक बहुत जल्दी वाला स्नैक्स बताएंगे. ये है पापड़ क्रिस्टेड फिश फिंगर. सो हम शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम बैटर कैसे बनाते हैं. बैटर बनाने के लिए एक अंडा तोड़ा. थोड़ा फिश की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं 2 अंडे तोड़ रहा हूँ. अंडा तोड़ने के बाद आप थोड़ा सा मैदा, रिफाइंड फ्लावर, इसको इसमें मिलाइए. देखिए, मैं आपको कोई टेक्निकल चीज़ नहीं बता रहा हूँ. ये बहुत सिंपल है. घर पे आप कैसे भी मूड में आप इसको बना सकते हैं. थोड़ा सा हल्का सा मस्टर्ड का पेस्ट मार्केट में बहुत अवेलेबल है. ये हल्का सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर और 1 वेज ऑफ लेमन. अब आप इसको मिला दीजिए.
ये जो बैटर है ये ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए और थोड़ा इसको ज़रा हाथ को तेज चला के थोड़ा, ताकि इसके अंदर जो लम्स बन रहे हैं वो टूट जाए। ये आपका बैटर रेडी है। एक काम करिए, सारे फिश फिंगर जो पहले से कटी हुई हैं, देखिए इवन साइज में फिंगर के शेप में, इसको थोड़ी देर बैटर में डाल दीजिए। हम कम से कम 3-4 मिनट इसको इसमें छोड़ देते हैं। तब तक मैं ये अपने हैंड ग्लव्स रिमूव करके मैं आपको जो इसका क्रस्ट है, जो क्रम्ब है और ब्रेड क्रम्ब और पापड़ दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा जिसमें हम फिश को रोल करेंगे। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब, ये फ्रेश ब्रेड का ब्रेड क्रम्ब है और ये मैंने ऑलरेडी रोस्टेड पापड़, और अब थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिक्स कर दीजिए ब्रेड क्रम्ब के साथ में। कोट करने के लिए पापड़ और ब्रेड क्रम्ब को साथ में मिला रहे हैं। एक एक करके हमने फिश की जो फिंगर्स ऑलरेडी मैरिनेट हो गई है उसको निकाला और हमने रेडीमेड क्रम्ब के अंदर में डाला। और ध्यान रखिए जब आप इसको निकाल रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा जो है इसके अंदर से एक्स्ट्रा मैरिनेशन दूर करें। इसको इस तरीके से प्रॉपर्ली मिलाइए। चलिए, ये तो सब कुछ रेडी हो गया। मैं आपसे एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा। पहले सेगमेंट में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। बहुत लोग शिकायत करते हैं अंडे नहीं छिले जाते हैं बॉयल होने के बाद में, आलू नहीं छिले जाते हैं बॉयल होने के बाद में। बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं घर पे वो कहती है यार हमारे नाखून ख़राब हो गए, आलू इसके अंदर घुस गया, छिलके इसके अंदर चले गए, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर नेल्स। बहुत छोटी सी एक टिप मैं आपको दूंगा, वो ये है कि जब भी आप हल्का अंडा बॉईल कर रहे हैं या आलू बॉईल कर रहे हैं, थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ द टाइम फॉर कुकिंग स्टार्ट्स। मैं पहले फ्रेंच फ्राइज, ऑलरेडी मार्केट में बहुत अवेलेबल है फ्रेंच फ्राइज आज की तारीख में। इसको आप लीजिए थोड़ा सा और हल्का सा इसको पहले फ्राई कर लीजिए, थोड़ा सा गोल्डन कलर और आना है, देन इट्स रेडी टू ईट। अगर फ्रेंच फ्राई थोड़ी सी भी कच्ची रहेगी तो इतनी क्रिस्पनेस की आवाज़ नहीं आएगी। और इसमें एक्सेस फैट के लिए आप देख रहे हैं मैंने एक सीव इस्तेमाल करी है, बट साथ साथ में मैंने यहाँ पे इसको एक पेपर के ऊपर डाला है ताकि एक्सेस फैट ऑब्जर्व कर ले। नाउ इट्स अ टाइम फॉर फिश टू फ्राई। ओके, सो इट गोज डाउन टू द हॉट ऑयल। इस बीच में एक इसकी प्लेटिंग की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा सा लेटिस बीच में डाला ताकि इस डिश को मैं थोड़ा कलर दे सकूँ, और a bit of a tartar sauce। ये देखिए, slowly the fish is changing its color, and now this fish is almost ready। now मैं इसको अगेन एक प्लेट जिसके ऊपर थोड़ा सा पेपर है रखा हुआ है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोख ले, मैं यहाँ पे इसको ऐसे रखता हूँ, और ये हमारी क्रस्टेड पापड़ क्रस्टेड फिश इज रेडी। पहले से फ्राई करी हुई फ्रेंच फ्राइज, और ये फिश। एक लेमन आप यहाँ से लेके इस पर हल्का सा डाल दीजिए। द पापड़ क्रस्टेड फिश फिंगर इज रेडी फॉर कंजम्पशन। आप इसको घर पे बना सकते हैं। अगर आप कोई स्टेप भूल गए हो तो रिकैप को प्लीज देखिए।
पापड़ क्रस्टेड फिश फिंगर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में एग, मैदा, चॉप्ड फेनल लीव्स, मस्टर्ड पेस्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लेमन जूस डाल के मिक्स कर लें। अब फिश को उसके अंदर डाल के मैरिनेट करें। एक बोल में ब्रेड क्रम्स, पापड़ डाल के मिक्स करें। अब मैरिनेटेड फिश को ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में डाल के कोट करें। एक पैन में ऑयल डाल के स्लाइस्ड पोटैटो को डीप फ्राई करके फ्रेंच फ्राइज बनाएं। अब कोटेड फिश को भी डीप फ्राई करें। फ्रेंच फ्राइज पापड़ क्रस्ट फिश फिंगर्स को पसंदीदा डिप के साथ परोस दें। वाह क्या टेस्ट है। वेल फ्रेंड्स, आई होप आपने आज जितनी भी रेसिपीज देखी आपको वो बेहद पसंद आई होंगी एंड डेफिनेटली आप उन्हें घर पर जरूर ट्राई करने वाले हैं और ट्राई करके अपने फीडबैक्स हमें भेजने वाले हैं। हमारा मेल आईडी है wahkyatastes@gmail.com। सो दोस्तों, अब वक्त है उस लकी व्यूअर की मेल पढ़ने का। सो लेट मी सी वो कौन होने वाले हैं। ओके, इज गोइंग टू बी सौरभ फ्रॉम भोपाल। He says, your show has helped me to find my inner chef and master the art of cooking. I have tried your recipes and my friends just loved it. I want to say thank you and hope the show will go on. Well, thank you so much, Saurabh. और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके फ्रेंड्स को रेसिपी पसंद आई है। Well, जब तक आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है, हमारा शो तब तक चलता रहेगा। Do not worry for that. So, दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।